this video, I'll be discussing a cue card and its follow-up questions, and you'll be glad to know that ये cue card recently पंजाब रीजन में एग्जाम में पूछा गया है. So आइए डिस्कस करते हैं क्यू कार्ड हमारा. Describe a time when you organized a happy event successfully. You should say what the event was, how you prepared it, who helped you to organize it, and explain why you think it was a successful event. So these are the 4 questions that you need to cover in your cue card. First, वो इवेंट क्या था और आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया, किसने आपकी मदद की वो ऑर्गेनाइज करने में, और एक्सप्लेन कीजिए आपको क्यों लगा कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट था. सैम्पल आंसर. I love to organize events. On July 16 last year, it was my mother's 50th birthday and I wanted to do something special for her. However, due to the pandemic, most celebrations were forbidden. We were all cooped up inside our houses. I decided to give her a surprise online party. I asked my sister for advice on how we can make it special. We have a large family and we asked everyone in the family, all our cousins, uncles, aunts, to record something for my mother. It could be anything. There were no restrictions. One of my cousins recorded a dance performance and an uncle wrote a beautiful poem. My grandpa sang a beautiful song in Gujarati. After receiving all the videos, we combined them into one big video. It was not easy though. We had to send reminders and messages some of my aunts and uncles again and again. Some events sent it one day before the birthday, but they all finally did it. Moreover, it was all hard to remind them to keep it a secret. We were sure one of our aunts or uncle would spill the beans. Thankfully, no one did. Then we organized a special get together on Zoom for the family. This was also hard because some of our relatives live in a different time zone. We wanted to choose a time everyone could be available. Here we failed to some extent, but some of our relatives couldn't be online at that time. The birthday fell on a weekday, so it was just not possible. On her birthday, I ordered her favorite truffle cake, and then when everyone joined the Zoom meeting, I handed my mom the phone and she told her someone wants to wish her a happy birthday. She was shocked to see all the family on the meeting. Then she cut the cake while I held the phone and everyone wished her happy birthday. Finally, for the big reveal, we played the video on the TV and recorded her reactions while watching the video, and we telecast it on the meeting on the split screen. One screen showing her reactions and the other showing the video. My mother had happy tears in her eyes by the end of it all, and I think that alone made it a successful event. However, others told me it was such a wonderfully organized and it was so nice meeting everyone online. Even after the video was over, everyone stayed on the meeting and we kept on talking and discussing everyday life. This is the end of your cue card, and now we'll discuss in your native language. I love to organize events. मुझे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत मज़ा आता है. 16th लास्ट ईयर जुलाई में मेरी मम्मी का 50th बर्थडे था और मुझे उनके लिए कुछ स्पेशल करना था. देखा जाए तो दूसरी जगह पेंडेमिक था, काफ़ी सेलिब्रेशंस जो थी वो फॉरबिडन थी, मनाने से मना की गई थी, और हम सबको हाउस रेस्ट एक तरह का मिला हुआ था, घर पे ही रहना है सो दैट चेन टूट सके. तो मैंने सोचा मैं अपनी मॉम को सरप्राइज ऑनलाइन पार्टी दूंगी. मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया और उससे एडवाइस ली कि कैसे स्पेशल बनाया जाए. हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है एंड हमने हर एक को पूछा, कजन्स, अंकल और आंट को बोला कि आप कुछ रिकॉर्ड करिए मम्मी के लिए, और वो कुछ भी हो सकता है. हमने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आपने हैप्पी बर्थडे ही बोलना है, नो. तो एक मेरे कज़न ने एक डांस परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की, बहुत सुंदर डांस परफॉर्मेंस थी, घूमर पे जो दीपिका पादुकोण का गाना था उस पर उन्होंने रिकॉर्ड किया. और एक अंकल ने मेरे मामा जी ने ब्यूटीफुल पोएम लिखी अपनी सिस्टर के लिए, मेरी मॉम के लिए, और मेरे ग्रैंडपा ने एक बहुत ही प्यारा गाना गुजराती में गाया. और जब हमने सारी वीडियोस हमें मिल गई, हमने इसको कंबाइन किया और एक बड़ी वीडियो बनाई. एंड ईजी नहीं था हालांकि, एंड हमने कई अंकल आंटीज को कितने रिमाइंडर भेजे कि भेजो भेजो प्लीज़ कुछ ना कुछ भेजो, और कुछ ने तो एक दिन पहले भेजी, एंड फिर भी हमने कर लिया.
and moreover it was all hard to remind them to keep it a secret. All obviously family में सबको चुप करवाना कि बताना मत बहुत बड़ा टास्क होता है खुद में, तो हमने सबको ट्राई किया कि वो सीक्रेट ही रखें, और मुझे लगता था मेरे एक अंकल आंट बोल देंगे, सो यहाँ पे आई हैव यूज स्पिल द बीन्स कि वो निकाल सकते हैं, बट थैंकफुली किसी ने नहीं निकाला। और एक ऑर्गेनाइज हमने किया स्पेशल इवेंट गेट टुगेदर, किस पे, जूम ऐप पे, किसके लिए, फैमिली के लिए। एंड हार्ड था बिकॉज कुछ रिलेटिव्स जो थे वो डिफरेंट टाइम जोन में रहते थे, कुछ कनाडा में थे, कुछ यूएसए में थे, तो हमने चूज़ किया वो टाइम जिसमें हर कोई अवेलेबल हो, बट कुछ हद तक हम फेल हुए क्योंकि कुछ रिलेटिव्स ऑनलाइन नहीं आए, और क्यों मम्मी का बर्थडे वीकडे पे था तो पॉसिबल नहीं था। उनके बर्थडे पे मैंने उनका फेवरेट ट्रफल केक ऑर्डर किया, और हर एक ने जूम मीटिंग जब ज्वाइन की, मैंने मम्मी को बोला मम्मी देख किसी ने आपको विश करनी है, आप प्लीज़ देख लो। तो जब सब ने मम्मी को विश किया, और मम्मी सबको देख के, सभी फैमिली मेम्बर्स को मीटिंग में देख के शॉक्ड हो गई। फिर उन्होंने केक कट किया और मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, और एवरीवन वाज विशिंग हर, कि सब उनको विश कर रहे थे। और फाइनली मैंने जो वीडियो बनाई थी, जब सबके कंट्रीब्यूशन के साथ हमने वो वीडियो टीवी पे चलाई, और उनको रिकॉर्ड भी किया कि वो देख के कैसे रिएक्ट करते हैं। एंड हमने वो जो वीडियो थी टेलीकास्ट की उस पर भी, जूम ऐप पे भी, और सबने देखा। हमने 2 स्क्रीन में उसको डिवाइड कर लिया था, एक पे मम्मी के रिएक्शंस आ रहे थे और एक पे वो वीडियो आ रही थी। वन स्क्रीन शोइंग हर रिएक्शंस एंड अदर शोइंग द वीडियो। माय मदर हैड हैप्पी टीयर्स इन हर आईज बाय द एंड ऑफ इट ऑल। मम्मी एक्चुअली रो रहे थे, खुशी के आंसू, वो बोल रहे थे खुशी के आंसू हैं। एंड आई थिंक दैट अलोन मेड इट अ सक्सेसफुल इवेंट। उनके खुशी के आंसू से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी उनके लिए यादगार मैंने छोड़ी है, और सभी ने छोड़ी है इनफैक्ट। हाउएवर अदर टोल्ड मी इट वाज सच अ वंडरफुली ऑर्गेनाइज। सबको लगा कि, सबने ये कहा कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, सबको बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को मिलके। और वीडियो जो थी जब ओवर हुई, फिर भी कोई भी नहीं ऑफलाइन गया, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे, क्या चल रहा है, किसका क्या हुआ, तो सारी बातें हम गेट टुगेदर एक तरह का ऑनलाइन में चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा सभी फैमिली मेम्बर्स को भी। तो इसी के साथ हमारे क्यू कार्ड का अंत होता है, एंड अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ द क्यू कार्ड। हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प चिल्ड्रन टू बी ऑर्गेनाइज? कहता पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं चिल्ड्रन को, बच्चों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि वो प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करें। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड हैव अ डेली शेड्यूल फॉर देयर चिल्ड्रन। सो गाइज, अक्सर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बहुत बार नोटिस किया स्टूडेंट्स करते हैं, स्केड्यूल, शेड्यूल। तो शेड्यूल भी सही शब्द है और स्केड्यूल भी सही शब्द है। एक अमेरिकन एक्सेंट है और ब्रिटिश एक्सेंट है, सो बोथ आर करेक्ट। दे शुड ऑल्सो अलॉट एवरी टास्क अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। कहता पेरेंट्स को एक शेड्यूल बना देना चाहिए बच्चे के लिए, और उनको एक टाइम अलॉट कर देना चाहिए कि इस टाइम पे फिनिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क देम टू राइट ईच टास्क ऑन द कैलेंडर एंड राइट हाउ मच टाइम दे एक्सपेक्ट टू गिव इट टू alongside it. Then there should be rewards and punishment for finishing or not finishing the task. तो अगर वो फिनिश करते तो उनको कुछ देना चाहिए, नहीं करते तो उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। On what occasions do people need to be organized? कहता किन occasions पे लोगों को organize रहना चाहिए, होना चाहिए? I don't think people need an occasion to be organized. We should try to be organized all the time. मुझे नहीं लगता कि किसी occasion के लिए होना चाहिए, हर पल organize होना चाहिए। When we are organized, we tend to save time and do things faster. अगर हम organize रहेंगे तो हम चीज़ें जल्दी कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ऑल्सो बीइंग ऑर्गेनाइज क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स। अगर हम खुद ऑर्गेनाइज रहते हैं तो क्या होता है, गुड इंप्रेशन पड़ता है किस पे, दूसरों के ऊपर। डज एवरीथिंग नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड? कहता है क्या ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को हमें पहले ही प्लान करना चाहिए, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए? आई थिंक ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स शुड बी वेल प्रिपेयर्ड, but the minor details can be left out. It's like a speech, we prepare the main ideas but we leave some liberty to make some changes with the minor details. Preparing everything in advance would be very exhausting if not possible. So it's very clear कि हमें जो चीज़ें हैं उनके लिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और माइनर डिटेल्स अगर छोड़ते भी है इट्स ओके। तो यहाँ पे हम अगर कोई स्पीच देते हैं और मेन आइडियाज तैयार कर लेते हैं, और खुद को एक लिबर्टी देनी चाहिए कि हम चेंजेस उसमें, माइनर चेंजेस डिटेल्स के ऊपर ला सकें। नेक्स्ट, डू पीपल नीड अदर्स हेल्प व्हेन ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स? कहता है लोगों को ज़रूरत है दूसरों की जब वो कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द टास्क। देखो भाई, काम के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ वी ऑर्गेनाइजिंग अ बिग इवेंट वी डेफिनेटली नीड हेल्प. For example, wedding planners have a whole team of 10 to 15 members because a single person cannot manage everything. But if there are small things like a small family get together, I think a person can organize it
ऑन द ऑन। खुद मम्मी, आपको आपके घर में पार्टी होती है, मम्मी खुद मैनेज कर लेती है ना, तो छोटी चीजें खुद इवेंट की जाती हैं, बट बड़ी चीजों के लिए यस हर एक के पास उनको हेल्प चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ योर फॉलोअप क्वेश्चंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये जो क्यू कार्ड है रिसेंटली आपका जो 2021 में एग्जाम में आए हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट विद यू। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम इसी चैनल पे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग की टेक्निक्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे और मास्टर कॉपीज भी डिस्कस करेंगे। टिल देन, सायनारा।